Hello friends, welcome to my channel Bhunesh Chawla Education, and in this video we have Shivang Chaturvedi here. So he's going to share his interview experience with Rapido. Hey, hi everyone. I'll give a brief introduction about myself. Many of you may know I'm Shivang Chaturvedi. I have around 2.6 years and 2.7 years of experience into data engineering only. And I've worked with the previously with the organization like Airtel Rapido, and right now I'm working in IDFC First Bank. So yeah, this is to give you a brief about what has happened in the Rapido. I quickly start to the Rapido's questionnaire. Again, we have already segmented out how I got the call and then how many rounds were there. So yeah, to answer the question, I got the call from the Rapido from again from some Naukri.com. I'm not sure what was the exact platform, but most probably it was sorry for the Rapido. Yes, I have pinged the random guy on LinkedIn reaching out. So there was an opening. So I've asked him for the referral. He has applied for it, and I got a call from their recruiter. So my interview was scheduled, and this is also I was just when I saw the opening, I was just writing to the random person from that company, short sweet message about my experience and my resume. Yeah, so that worked out for me this time. And now jumping to the this interview wala part. So I have had three. There were three technical rounds. All three were technical only. Okay. And they were in the data engineering. So round first goes like this. So round first was supposed to be around 1 hour, but yeah, there were two panelists in that round. Again, it started with the basic things like what all tech stacks that I have worked on, right? It also involves the questions like basic Java and Scala. So since they were looking out for the someone who has done with the Scala type of thing, so they were asking. So yeah, probably the same format they followed. Like I remember there was one SQL question in which they have asked the SQL question was something like that we have to use the that array explode and explode outer type of thing we have to use, and then use the array merge kind of thing. So there I do not remember the exact question, but yeah, that was the SQL question, and again that was a doable, and some window function operation was applicable, right? Then they started to dig deeper on the Spark internals, wherein they have asked ki, can you explain me what are the different modes of the Spark, like client mode, cluster mode, what are the master in Spark, what actually EMR does for it, how does EMR is different from whatever that we used to in Kubernetes, basic questions. So they were asking, and also the Spark internals they went in depth. So as I told you guys already in previous video as well, ki I have written down one blog where I have written down the in-depth explanation how executor memory allocation works. So around 15 minutes, the discussion was on that there, wherein they have asked me, okay, what are overhead memories, how this execution layer memory and storage fraction changes, how does it impact. So I've explained them in depth. So yeah, this gave them the fair idea that Spark was there. So and the thing was that I was not asked any DSA question in this. Only just in the first round there was no DSA question that was asked of me. Then they moved on to the since basics of this microservice. Since I have mentioned this in my resume, they've clearly asked what are basic CI dependency injection in Spring Boot. They've also asked inversion of control in Spring Boot, how annotation and bean dependency works. Obviously, because I've mentioned this in the resume and they have the requirement of that. So first round was nothing as thinky. The out of the box it was standard questions. जब ask repartition और cookies में क्या अंतर होता है और फिर कैसे नेटवर्क पे शफिंग होती है, अगेन ऑल द सेम थिंग्स. सो स्पार्क स्ट्रीमिंग भी उन्होंने पूछने की कोशिश करी थी, बट आई वाज नॉट वेरी वेरी वर्स विद दैट. तो दैट कंक्लूडेड माय फर्स्ट राउंड. It was very sweet, simple, and
लगभग 1 घंटे का ही चल रहा था वो। Okay. तो पूरा उसमें यही था। Did they give any example question like process 100 GBs of data? या इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, बट उन्होंने जो ये क्वेश्चन 100 GB ऑफ डेटा वाला क्वेश्चन नहीं था उसमें। उसमें उन्होंने ये पूछा था कि वही जो आपने क्वेरी ये की है, इस क्वेरी को आप ऑप्टिमाइज कैसे करो, मतलब स्पार्क सीक्वल में दे वर ट्राइंग टू आस्क मी दैट, क्योंकि वो एरे मर्ज वाला जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने एक यूडीएफ लिखवाया था छोटा सा, कि उस उसको आप विदाउट, क्योंकि वो फंक्शनलिटी शायद ऐसा था कि डायरेक्ट आउट ऑफ द बॉक्स मिलती नहीं थी, और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कोई स्पार्क सीक्वल में होती है कि नहीं। तो दे वर जस्ट आस्किंग मी अबाउट द बेसिक सिंटेक्स, हाउ डू यू रजिस्टर अ यूडीएफ इन स्पार्क वगैरह, एंड अगेन दैट आई हैव टोल्ड यू नो कि देवास की एग्जीक्यूटर के बारे में काफी इन डेप्थ डिस्कशन हुआ था। तो देवर आस्किंग मी कि ये यूडीएफ कहाँ एग्जीक्यूट होता है, व्हाट आर द डाउन साइड्स ऑफ यूजिंग द यूडीएफ। देन दे जम्प्ड इनटू समथिंग है कि कैटीएस्ट ऑप्टिमाइजर क्या काम करता है, कैसे कैसे फेजेस में काम करता है। तो अगेन आई हैव टोल्ड यू कि कुछ भी एग्जैक्टली मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स पूछा हो। तो अगर आपका स्पार्क के स्टैंडर्ड प्रैक्टिशनर हो, यू विल बी एबल टू आंसर दैट, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। Okay. So सो then round second. या सो जंपिंग ऑन द राउंड सेकंड, अगेन इट वाज, जैसे कि फर्स्ट राउंड में आप देखा मोस्ट ऑफ मतलब जो डे टू डे टास्क होते हैं राइट, उस पे था। सेकंड राउंड ज्यादातर आर्किटेक्चर या फिर डिजाइन राउंड का उनको पूछना होता है। तो वन स्टैंडर्ड क्वेश्चन विच आई फेस इन ईच एंड एवरी इंटरव्यू इन सेकंड राउंड वाज कि टेल मी हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन डेटा का पूरा पूरा एंड टू एंड, समवन फ्रॉम द सोर्स टू सिंक, आपने कैसे उसको स्ट्रक्चर कर रखा है, Architecture. राइट। तो yes. So just one add-on, one note for all the freshers who are looking out, or freshers or even experienced who have some interview schedule for any company, right? Hmm. Suppose you have XYZ के साथ आपका interview schedule है, try to go on Medium and find if there is any article related to that particular company. So the good thing that worked for me for the Rapido was I just found it just 3 days ago. I found it the Medium article where someone from the senior data engineers published this article about their data architecture, right? On a high level, very high level. But हाँ, I got to know कि they are also doing the Lakehouse architecture पे ही वो काम कर रहे हैं, and what all challenges they are facing. So obviously this anything that is available to you before interview may help you in that interview। तो मैंने उनको उसी पर्सपेक्टिव से बताया, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने वही बताया क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंट था, बट टेक्स्टिक उसके बाद मेरे को ये पता चला कि टेक्स्टिक बहुत ज़्यादा सिमिलर हो गया है जो एयरटाई का था और जो यहाँ पर था। तो एयरटाई में जैसे हम लोग प्रेस्टो, आई हैव एक्सटेंसिवली वर्क ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रेस्टो एज अ कंप्यूट इंजन। तो वो एक वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट था मेरा एयरटाई में, जो मैंने डेटा प्लेटफॉर्म में प्रेस्टो को ऐड ऑन किया था। तो देवर आई गॉट टू नो सिंस दीज गाइज आर आल्सो यूजिंग प्रेस्टो, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि प्रेस्टो के इंटरनल शफी वो प्रेस्टो कंपोनेंट कैसे तोड़ता है, प्रेस्टो गेटवे कैसा होता है, तो ये वाले क्वेश्चन से। तो या जस्ट FYI कि आप एक बार उनका एक बार ब्लॉग से जाके देखिए, राइट। तो वही मैंने उनको बताया पूरा एंड टू एंड कि हमारी काफका टॉपिक में आता है, और यहाँ पर हमारी इंजेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुआ करती थी एयर टाइम में। तो हाँ, वी गॉट एवरीथिंग ऑन द S3 पाथ एज एन जेसॉन फाइल और पार्के फाइल और एनीथिंग, और प्रोबेबली सम अदर सोर्स दूसरी टीम के मोंगोडीबी को रीड करते थे हम, फिर कुछ। तो मैंने उनको बताया कि हम लोग ऐसे ब्रॉन्ज ईयर, सिल्वर ईयर और गोल्डन ईयर में बांट रखा है, और मेजर यूज केसेस हमारे मशीन लर्निंग है, एनालिटिक्स है, जो एनालिटिक्स, और तीसरा आपका वो है क्या बोलते हैं डिस्कवरी, जो कि बैक एंड है। बट बैक एंड का भी इतना ज़्यादा हाई यूज केस नहीं था। तो उस टाइम पे मैंने ये बताया मेजर ये जो डोमिनेटेड था वो एनालिटिक का यूज केस था हमारा, ठीक है। तो मैंने उनको ये बताया। तो अगेन देवर आस्किंग कि क्या क्या चैलेंजेस डे टू डे, जस्ट देवर आस्किंग मी कि डे टू डे चैलेंजेस आपको फेस क्या क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि टू मेंटेन द डैग, ये खूब सारे डैग थे। एंड अगेन माय मेजर प्रोजेक्ट वो समथिंग कॉल्ड एनिग्मा आई वर्कड ऑन, जो कि मतलब मेटा डेटा प्लेटफॉर्म था पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप का, क्यों जो कि हम लोगों ने एयर टाइम में कुछ कुछ बनाया था। तो उसके अंदर का भी आर्किटेक्चर पूछ रहे थे कि भाई आपने कौन सी एंटिटी डिजाइन करी। तो एनीथिंग may come up from resume, I've told you time and again,
तो एनीथिंग में मे बी आज फ्रॉम योर रेज्यूमे एट फ्रॉम अ वेरी टेक्निकल पर्सपेक्टिव कि आपने डीबीटी क्यों नहीं लगाया, ऐसा क्यों नहीं किया। तो यू हैव टू हैव दिस आंसर। प्रोबेबली यू मे नॉट बी द सिंगल वन पर्सन टू वर्क एंड टू एंड ऑन दैट प्रोजेक्ट, बट यू मस्ट हैव ऑल द आंसर कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो वो क्यों का आंसर बहुत पूछ रहे थे, राइट। तो ये सेकंड राउंड में एक तो ये रहा कि पुराने एक्सपीरियंस का पूरा पूरा पूछा उन्होंने, पूरा एंड टू एंड बताओ पुराने काम का, ट्रीनो का उन्होंने पूछा। तीसरा उन्होंने वही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया, जिसमें उन्होंने पेमेंट की एक पाइपलाइन बताई थी। तो पेमेंट की पाइपलाइन में उन्होंने ऐसा पूछा था कि पेमेंट की पाइपलाइन आती है, इवेंट आते हैं, तो और इवेंट के कुछ कुछ मेटा डेटा कॉलम बताए थे, राइट। तो देव आस्क्ड मी कि इंक्रीमेंटल डेटा है, राइट, इंक्रीमेंटल डेटा को आप कैसे इस पे फैसिलिटेट करोगे कि आप, क्योंकि आप पार के फाइल में रख रहे हो, अगर एक बार पार्टीशन क्रिएट हो गया और आपको पार के फाइल अपडेट करनी है तो पूरा का पूरा पार्टीशन अपडेट होता है। देयर इज नथिंग सेम थिंग कॉल कि आप सिंगुलर रो को आप अपडेट कर रहे हो, राइट। तो देव आस्क्ड मी कि राइट पार्टीशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पार्टीशन स्ट्रेटजी क्या होगी। तो मैंने उनको बताई थी कि डे वाइज कर सकते हैं पार्टीशन, और फिर वो तो, और उनका ये भी था कि ये इवेंट्स में ऑल्सो कम, ये इवेंट्स मतलब सोचो आप कि कोई एक पेमेंट 3 दिन पहले का हुआ है, वो 3 दिन बाद भी आ सकता है। अभी उसका आपने बैच में कैलकुलेट करके यू आर ओके, यू हैव ऑलरेडी डन दिस। अब आप उसको पुराने पार्टीशन पूरे डेटा को कैसे अपडेट करोगे, हम्म राइट। तो ये ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिसमें वो मोर ऑफ अ कन्वर्जेशन थी। तो वन पार्ट वाज जो उन्होंने एयरटाई का पूछा, ये पूछा और सिनेरियो बेस्ड पूछा। तीसरा उन्होंने ये आप लोग मतलब आई आई मे सजेस्ट यू बिकॉज ऐसा कुछ हुआ भी था, बट ऑन स्मॉल स्केल। तो दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डेटा क्वालिटी एंड सिक्योरिटी। तो जो कि एक नया एस्पेक्ट है, कुछ कुछ इंटरव्यूज में पूछते हैं डेटा क्वालिटी एज इन क्या आप हेल्थ चेक्स होते हैं डेटा सेट के, क्वालिटी चेक्स होते हैं। सिंस आई मेंशन कि एक एक फ्रेमवर्क था हम लोगों ने जो यूज कर रखा था, वॉचडॉग करके, वो उस पे क्या बोलते हैं, पाइथन बेस्ड एक फ्रेमवर्क पे उस पर रैपर लिखा हुआ था। तो उसका उन्होंने यूज केस पूछा था, तो मैंने उनको बताया था कि क्या बोलते हैं, पेमेंट की पाइपलाइन में हमने एक वो लगा रखा था, चेक है चेक, कि कोई भी रेवेन्यू का नंबर जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। तो फिर ये कुछ कुछ ऐसा एग्जैक्टली हुआ नहीं था हमारे साथ, बट ये टेस्टिंग में ये बग पकड़ा गया, बट आई टोल्ड देम इन सच अ वे कि इस ये प्रोडक्शन में पकड़ा गया था, राइट। इतना आप रिस्क ले सकते हो इफ यू आर वेरी वर्स विद इट। तो मैंने उनको बताया था कि कि हमारी स्ट्रीम्स आती थी एयरटेल से, तो स्ट्रीम में नंबर इनफीड होने के कारण अगर इंट मैक्स से ज्यादा चला गया तो नेगेटिव नंबर आने लग गया था। तो उसकी वजह से पेमेंट का नंबर आ गया था और ये पाइपलाइन ने बचा लिया था डेटा क्वालिटी के एक एग्जाम्पल से। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि एक एग्जाम्पल से यू कैन सब्सटेंशिएट इफ यू आर वेरी वर्स विद द एग्जाम्पल, but take this risk only if you are very versed with that example. He or she may go deep. तो दिस वाज मोर ऑफ अ सेकंड राउंड, उसमें कुछ कुछ बेसिक बेसिक एयर फ्लो के क्वेश्चन से, कुछ कुछ एचपीए वगैरह पूछ रहे थे, क्यूबरनेटिस का एचपीए वगैरह क्या होता है, मतलब डिजाइन राउंड था। और ये सब और यहाँ पे कोडिंग भाई को नहीं कराई थी मेरे से, मतलब मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन था, आर्किटेक्चर राउंड ही था, राइट। तो तो क्या सेकंड दिस राउंड फर्स्ट राउंड से टफ था? आई वोंट से कि टफ में कैसे कहूँ, फर्स्ट राउंड से तो डेफिनेटली सेकंड राउंड टफ था, क्योंकि फर्स्ट राउंड वाज अ मोर ऑफ अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप मतलब, मैं नहीं कहूंगा कि आप कि आसान था या टफ था, बट बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे कि भाई स्पार्क में ये आ गया तो आप कैसे हैंडल करते हो, स्माइल स्मॉल फाइल प्रॉब्लम क्या होती है स्पार्क में, ओ आर सी वर्सेस सी एस वी अच्छा। में क्या। हम्म। हाँ, तो फाइव टाइप का क्या अंतर पड़ता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन से। तो फर्स्ट राउंड वाज मोर ऑफ अ वेरी स्टैंडर्ड। सेकंड राउंड कि आपको जो मतलब सोचना पड़ता है चीजें कि हम्म जो आपको ऐसे एज एन आप नेट पर टाइप करोगे तो डायरेक्ट आंसर उसके कुछ नहीं मिलेंगे, यू हैव टू थिंक एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट, राइट। तो वही सारी चीजें थी। तो सेकंड राउंड ये था। तो दिस concludes more of a second round. It was again scheduled for 45 minutes, but it stretched up to 1 hour, right? ओके। तो हाँ, एंड फिर उसके बाद मेरे को पता चली, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ था नहीं कि आपको पता चले कि आपने सही जवाब दिया, या फिर अगेन आई वाज स्ट्रगलिंग इन बिटवीन, तो ही वाज हेल्पिंग मी आउट थ्रू, हम्म राइट। तो बहुत ही सही था, मतलब मेरे को उसके बाद ये पता चला कि ठीक ठीक गया है।
Then I again got a call from HR, and third round was scheduled. Just to be mindful, only for the Rapido. It may not be true for you guys for other companies, right? So Rapido में I was told कि I have already cleared the both the rounds. Third round is supposed to be hiring manager, and hiring manager round में technically नहीं पूछेंगे, ऐसा HR ने मेरे को बोला था. Hmm. But to be very frank, let me tell you कि hiring मैंने who are hiring manager, these are very senior principal Hmm. engineers, right? So हो सकता है आपसे एकदम टेक्निकल ना पूछें, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछें. But for me, if I suggest you, if there is some established startup who has their expertise in technical thing only, तो Hmm. बी prepared, don't be under the impression कि नहीं पूछा जाएगा. Let me tell you, it was the most technical round that I have ever had in my whole career. मतलब काफी था, और ऐसा नहीं था कि क्या, बट मजा आया उस राउंड में. तो अगेन थर्ड राउंड वाज विद देयर प्रिंसिपल इंजीनियर हु हैपेंस टू बी लीडिंग द होल डेटा इंजीनियरिंग, राइट? तो अगेन ही केम इन, ही आस्क्ड मी कि वो एनिग्मा के बारे में उन्होंने काफी पूछा. ये आज में बहुत बहुत सारे उन्होंने अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे. ना कि स्पार्क, ये ऑल्सो आज में फ्लिंक. अब क्योंकि मेरे को इस टाइम पे फ्लिंक का पता नहीं था, बट स्टिल ही वाज जस्ट चेकिंग माय कॉन्सेप्ट्स. वो मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि भाई एसिड प्रॉपर्टीज कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, राइट? और मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल, कैसे जीरो से हमने स्टार्ट किया, राइट? जैसे क्वेश्चन कैसा था, इतना ओपन एंडेड था. मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, कि यू हैव दिस रिक्वायरमेंट, आपके पास एक डैशबोर्ड है, राइट? तो आपके पास एक डैशबोर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डैशबोर्ड, Hmm. राइट? तो उस डैशबोर्ड को आपको लाइटनिंग फास्ट स्पीड से लोड कराना है. तो अब आप क्या, और वो माई सीक्वल में डेटा पड़ा रहता है जो कि टैबलो से वो पावर्ड अप है, ठीक है? और ये भी चीज वो नहीं बताएंगे, यू हैव टू आस्क देम. उनने बस इतना बोल दिया डैशबोर्ड है, बिकॉज दे वांटेड टू नो, राइट ना. और दिस डैशबोर्ड कैन बी फ्रॉम अ मल्टीपल रीजन्स. मतलब यूएस में हो सकता है वो डैशबोर्ड, ईयू में हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, मल्टीपल रीजन्स जो होते हैं उसमें होता है. तो आप इसको कैसे लाइटनिंग फास्ट स्पीड से कराएंगे, राइट? दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन. तो तो सबसे पहले they were checking कि whether you were able to define the problem statement or not. तो मैंने उनको बोला कि since it was a dashboard, और मैंने उनको पूछा कि डैशबोर्ड की अपडेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, बिकॉज दीज थिंग्स यू आस्क ओनली व्हेन यू आर वेरी वर्स विद द क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, राइट? है ना? Yeah. तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर मतलब मैंने उनको बोला कि अच्छा, फिर ये अपने को पता चाहिए कि रीड हैवी यूज केस है, राइट हैवी नहीं है. राइट वंस रीड हैवी यूज केस है. हु आर योर डाउनस्ट्रीम कंज्यूमर, सिंस द डैशबोर्ड इट मस्ट बी विद सम बिजनेस टीम हु आर रेफरिंग टू दिस डैशबोर्ड एट वंस. और प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि आपका वो डैशबोर्ड कस्टमर्स को दिखता हो, मतलब उस पर भी थ्रॉटल बहुत सारे आते हो. तो जस्ट टू मेक श्योर कि भाई वेदर इट इज अ रीड रीड हैवी राइट हैवी बोथ, दोनों का यूज केस है, या फिर सिर्फ रीड हैवी यूज केस है, या रीड हैवी यूज केस है, या ये वन टाइम राइट है. अपडेशन कैसे आते हैं उसमें, रियल टाइम पे अपडेशन आते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही क्वेश्चन थे. तो देन इट ऑल बॉयल डाउन की ठीक है, वन टाइम अपडेशन होगा, स्पार्क जॉब है जो आपकी लिखती है, तो आप करोगे कैसे, Hmm. राइट? तो मैंने उनको बोला, स्टार्ट किया. तो वन थिंग वाज कि ऑब्वियसली इट इज मेकिंग सम क्वेरी टू योर डेटाबेस, राइट? तो डेटाबेस में आप जो भी बता सकते हो कि भाई मैं क्या करूंगा, और उसमें डेटा बड़ा है, ऐसा नहीं है कि ऑल इट इज अ गोल्डन डेटा, इट इज अ बड़ा डेटा. तो आपको क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है डेटाबेस में एग्जीक्यूशन के, आपने कोई क्वेरी चाहिए, राइट? तो क्वेरी का आपको ऑप्टिमाइज करना है. तो आप क्वेरी पैरामीटर देखोगे, व्हाट आर योर फिल्टर पैरामीटर्स एंड नाउ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल क्रिएट इंडेक्सेस. अब इंडेक्सेस में भी वो थोड़ा और पूछ रहे थे कि हैश इंडेक्स कब क्रिएट करोगे, पार्शियल इंडेक्स कब क्रिएट करोगे, एंड ऑल दैट, ऑल दिस क्वेश्चन. लेट मी टेल यू, आई वाज नॉट फुली एबल टू आंसर. जस्ट ऊपर ऊपर से मेरे को पता था, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है? फिर उन्होंने मेरे को, चलो ठीक है, आपने एक ईयर निकाली थी कि क्वेरी फास्ट करनी है, बट इफ यू रिमेम्बर द ओरिजिनल क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड मी स्पेसिफिकली कि डिफरेंट रीजन में, दैट मींस दे वांटेड टू ऑप्टिमाइज ऑन द नेटवर्किंग एज वेल. तो नेटवर्क पे आप कैसे करोगे? तो इट इज समथिंग, और इफ यू गाइस हैव हर्ड ऑफ इट, Hmm. समथिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग होती है, योगियाइजेशन, डेटा का योगियाइजेशन होता है, और ऑल दैट. तो वो सारी चीज़ों पे बात करी थी. तो मैंने उनको बोला था डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग में रेडिस को यूज़ कर सकता हूँ मैं,
हम्म, और फिर ऐसे रेडिस में आप एफिनिटी भी बता सकते हो कि भाई मेरा ये डेटा ऐसा है, या फिर आप दूसरा कर सकते हो कि हम्म, मेरा रेप्लिकेशन में डेटा का इतना ज्यादा रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक बार जब मैं राइट कर रहा हूँ रात को, तो मैं, हो सकता है वो जॉब नॉर्मली 15 मिनट में राइट कर देती हो, बट क्योंकि मेरे को दिन भर उससे रीड कराना है, मिनिमम लेटेंसी चाहिए, तो मैं उस जॉब को 15 मिनट की जगह 1 घंटे में राइट करूंगा, 4 एप्लीकेशन फैक्टर से हर एक रीजन में यूटिलाइज करके डेटा को वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, डेटा यूटिलाइजेशन कर दूंगा, राइट। और इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं था, राइट, क्योंकि वही अगेन आइडियाज एवर एक्सप्लोरिंग। तो हम्म, ऐसे ही सेकेंड थर्ड राउंड में वो ये एक क्वेश्चन था, जो फिर तीसरा उन्होंने पूछा कि आर यू वेरी वर्स विद द क्यूबरनेटीज, क्योंकि उनको वो पता चल गया था, दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड आउट माय स्पार्क केस, और मुझे स्पार्क याद है, दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड आउट माय बेसिक स्प्रिंग बूट केस कि भाई एपीआई यकीन है कि नहीं, आइडिया है कि नहीं, कि भाई CRUD एप्लीकेशन कैसे चलती है, जावा कैसे चलता है, एंड ऑल दैट। I'm just cutting you here through the normal questions because it was all standard questions, ऐसा कुछ नहीं कि नया पूछ लिया हो, बट जो ओपन एंडेड क्वेश्चन थे वो यही थे, राइट। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को पूछा कि हाँ, स्टेटफुल डिप्लॉयमेंट क्या होती है क्यूबरनेटीज में। तो स्टार्ट हुआ वही बेसिक से क्यूबरनेटीज कि भाई क्यूबरनेटीज क्या है, फिर क्यूबरनेटीज में कैसे होता है, पॉड होते हैं, पॉड के अंदर कंटेनर होते हैं, उनके अंदर कैसे नेटवर्किंग होती है। तो वाई आई वाज रिमेम्बरिंग, क्योंकि मैं यहाँ इस पॉइंट पे आके रुक गया था कि मेरे को नहीं पता था अच्छे से कि स्टेटफुल डिप्लॉयमेंट क्या होता है, आइडिया था, क्योंकि वो बात जब हो रही थी ना उस क्वेश्चन पे, तो ये था कि भाई आप कैसे में इंश्योर करोगे कि क्यूबरनेटीज से मतलब उनका क्वेश्चन, हाँ, बहुत ये था कि यू हैव ऑलरेडी वर्क विद द डेटाबेसेस, राइट, डेटाबेसेस एज इन आप अपना डंप आरडीएस में देते हो। हैव यू एवर वंडर्ड कि आरडीएस हमेशा वर्चुअल मशीन पे क्यों होते हैं, हम्म, आरडीएस कभी भी क्यूबरनेटीज पे क्यों नहीं होते, क्योंकि आरडीएस में बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे डेटा बढ़े वैसे। तो फिर मैंने उनको बोला था कि क्यूबरनेटीज में वो चीजें रखते हैं जो कि अपनी स्टेटफुल बहुत ज्यादा नहीं होती, एज इन अगर लॉस हुआ तो मेरा डेटा लॉस होगा, हम्म, राइट। तो डेटा लॉस होगा तो फिर उसके बाद मेरे को अप टाइम चाहिए, तो मैं वर्चुअल मशीन पे रखता हूँ, क्योंकि वो डेटाबेस है, परसिस्टेंट स्टोरेज है, मेरा कोई उसमें लॉजिक नहीं लिखा है, हम्म, मेरा वो सर्विस लेयर पे है। तो इसी, और ये दीज ऑल पार्ट्स आर अ पार्ट ऑफ डेटा आर्किटेक्चर एंड ऑल दैट। तो हाँ, मैंने उनको बोला था, फिर उन्होंने पूछा स्टेटफुल डिप्लॉयमेंट होती है, कभी करी है, तो मैंने उनको बोला नहीं, बट मेरे को पता होती है कैसे काम करती है, नहीं होता, तो देन दे स्टॉप्ड देयर। तो वही था, फिर उन्होंने फ्लिंक की चेक पॉइंटिंग पूछी थी, चेक पॉइंटिंग फ्लिंक में कैसे होती है। फिर उन्होंने ये पूछा था कि क्या बोलते हैं, वाटर इवेंट टाइम स्टैम्प और ये सब, इसमें वाटर मार्क हैंडलिंग क्या होती है, तो बस यही, इट वाज मोर ऑफ अ यस। ऐसे करके थर्ड राउंड भी कंक्लूड हुआ था। okay. So what was your experience in Rapido after joining? So it was 9 months. So Rapido as an organization is very very like, I tell you, it is one of the best place that I've worked. Though I have very yes experience to comment on these things, but for anyone, for me it was a more of a personal reasons that I have, because I was more again towards work from home. Still, the policies are very much friendly. If you are giving your 100% to them, they will be more than willing to give you 150% back to you. Hmm. So the managers are the person whom I talk to, no. He was a principal engineer, and on a daily basis, I had to have one-to-one with him. The people there are so like ओपन माइंडेड, ओपन टू आइडियाज कि आपके पास है। उनके एक एक पार्ट ऑफ कल्चर भी था, डेटा आर्किड करके थी, वेयर एवरीवन इज प्रेजेंटिंग देयर आइडिया, ही एक्ट वर्किंग देयर। Okay. Thank you, Shivang, for coming on this channel and sharing your interview experience. श्योर पुणे।